Hello my dear students, welcome back to your YouTube channel Tech English. Today I will teach you chapter 4 from the first slide, that is from the diary of Anne Frank, which is an extract from Anne Frank's diary. And in this diary, Anne Frank has discussed about her life and her family also, as well as her friends, whatever she experienced during the Holocaust period, everything is reflected in her diary. So her diary is very important because when she wrote the diary, she was thinking that nobody will read the diary. But after her death, when it was found by her father, he read the diary and it was full of psychological insight. It was full of so much mature thoughts that he got it published in Netherlands as well as in USA. Netherlands में publish हुई 1947 में and US में publish हुई 1952 में. So who was Anne Frank? Anne Frank was a Jewish girl. She was born in Germany on June 12, 1929. She wrote this diary when she was hiding with her family and friends because of German occupation in Netherlands. Her father Otto Frank was the only survivor of the whole group because Anne Frank's whole family was died due to German tortures and German persecution. So when after the World War II was over, her father Otto Frank returned to Amsterdam and he found the diary. The diary was given by Maib Geist. She was the lady who brought them food in their hiding place. So she gave her father pile of papers and documents that was written by Anne Frank as a diary. So when he read the papers, when he read the writings of Anne Frank, he was so much impressed due to her mature thought that he got it published. So this was the introduction of the chapter. जो भी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, अपने कमेंट्स के थ्रू हमें सजेशन और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर करिएगा. अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके. सो लेट्स स्टार्ट. Before the explanation of the chapter, first of all let's see about Anne Frank, that who was Anne Frank and why her diary is so much important. Anneliese Marie Anne Frank was a German born Jewish girl. तो Anne Frank का full name क्या है? Anneliese Marie Anne Frank. She was born on 12 June 1929 and she was died on either February or March 1945. It means that when she was died, she was 15 years old girl and she was German born Jewish girl. German born Jewish girl मतलब उनका बर्थ हुआ था जर्मनी में और वो एक जूइश गर्ल है, यहूदी गर्ल हैं. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नेदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2. तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन का नेदरलैंड पे कब्जा हो रहा था, वो कब्जा कर रहे थे क्योंकि जर्मन में हिटलर की सत्ता आ गई थी 1933 में. तो उसके बाद उन्होंने जूइश लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, उन्हें किल करना शुरू कर दिया क्योंकि वो जूइश को पसंद नहीं करते थे. उनको लगता था कि उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है जूइश. तो इस वजह से एन फ्रैंक की फैमिली भी क्योंकि जूइश है तो उनको काफ़ी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा. तो एन फ्रैंक ने ये डायरी कब लिखी? जब वो अपनी फैमिली के साथ छुप रही थी. कहाँ छुप रही थी? एम्स्टर्डम, जो कि नेदरलैंड की कैपिटल है. हर फैमिली हैड मूव्स टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. तो जब जर्मनी में नाजीज की सत्ता आ गई, नाजीज मतलब हिटलर की सत्ता आ गई 1933 में, तो उसके बाद उसकी फैमिली को एम्स्टर्डम में जाना पड़ा, एम्स्टर्डम मूव होना पड़ा क्योंकि वहाँ पे वो सेफ नहीं थे. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू नेदरलैंड. लेकिन वो फंस गए. कब फंस गए? जब नाजी का ऑक्यूपेशन नेदरलैंड में भी होने लगा, जब नाजी का एक्सटेंशन होने लगा, नाजी जो थे उन्होंने नेदरलैंड में भी कब्जा कर लिया, तो वो लोग फंस चुके थे. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1933 में जर्मनी में हिटलर की सत्ता आई थी. इसका मतलब है कि उस समय एन फ्रैंक 4 इयर्स की थी. तो 4 इयर्स से उन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़ता था. एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन इंक्रीज. तो जब वहाँ पे भी नेदरलैंड में भी जब जूइश लोगों के लिए नाजीज का ऑपरेशन बढ़ने लगा, अत्याचार बढ़ने लगा, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942. तो उनकी पूरी फैमिली को जुलाई 1942 में छिपना पड़ा. कहाँ छिपना पड़ा? इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग. तब उनकी पूरी फैमिली उनके फादर ओटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में जाके छुप गई. तो आपको ईयर याद रखना है, आपको मंथ याद रखना है और ऐसा क्यों हुआ ये आपको याद रखना है. ये इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वॉज बिट्रेड. अब लगभग 2 साल वो वहाँ पे छुपे रहे, लेकिन
किसी ने उनके साथ विश्वासघात किया, किसी ने उनको बिट्रे किया, धोखा दिया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम। कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम क्या है? ये एक यातना शिविर आप कह सकते हैं। यहाँ पे जितने भी जूइश हैं उन्हें बंद कर दिया जाता था और उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। कई बार उनसे काम कराया जाता था। जो भी डिसेबल्ड लोग होते थे उन्हें किल कर दिया जाता था इवन, और कई बार उन्हें इकट्ठा करके वहाँ पे पॉइजनस गैस छोड़ के उन्हें किल किया जाता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में बहुत यू कैन से मोस्ट डिस्कस टॉपिक है होलोकॉस्ट का। इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगी। वेयर एंड डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गर बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। तो अब क्या हुआ, जब 2 साल ये छिपे रहे तो किसी ने इनकी फैमिली को धोखा दे दिया, किसी ने बता दिया कि ये लोग यहाँ पे छुपे हुए हैं। तो इसके बाद इनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया, तो वहाँ पे इनको बंद कर दिया गया, जिसकी बात क्या हुआ, इनकी एन फ्रैंक की डेथ हो गई। कहाँ पे? बर्जन बेल्सन में टाइफस से डेथ हो गई, और इसके 1 वीक पहले इनकी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी। हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। तो अब इनके पूरे ग्रुप में इनकी पूरी फैमिली फ्रेंड्स जो भी छुप रहे थे वहाँ पे, उन सब की डेथ हो गई और उन सब में केवल इनके फादर ही बच पाए। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गया, वो एम्स्टर्डम लौटे तो उन्हें इनकी डायरी मिली, और इनकी डायरी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया किसने दी थी, माइक गाइस ने दी थी, क्योंकि ये जहाँ पे छुपे हुए थे, जिनके ऑफिस में जहाँ पे छुपे हुए थे, तो वहाँ से कुछ पीसेज ऑफ पेपर उन्हें मिले। तो जब ये इनके फादर भी लौटे तो उनको वो दे दिया गया। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published it in English under the name Diary of a Young Girl। तो जब उनके फादर ने उनकी डायरी पढ़ी, उसको पढ़ के वो इतना ज़्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी कम एज की गर्ल के जो थॉट्स थे वो इतने ज़्यादा मैच्योर होंगे और इतने साइकोलॉजिकल इंसाइट से फुल होंगे। तो जब उन्होंने इसे पढ़ा तो उन्हें लगा कि ये तो बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है, और उन्होंने डिसाइड किया कि इसको पब्लिश करवाया जाएगा। तो उन्होंने इसे पब्लिश करवाया इंग्लिश में अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। और डायरी कब दी गई थी एन फ्रैंक को? 13th बर्थडे में। और मैंने आपको बताया कि एन फ्रैंक की जब डेथ हुई थी तो वो 15 ईयर्स की थी। तो 13th से वो 15 ईयर्स तक उन्होंने लिखा। इसका मतलब उन्होंने 2 साल का जो भी उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई वो उन्होंने उस डायरी में मेंशन किया है। और डायरी में 1942 से 1944 तक की डिटेल्स है। Chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। तो ये आपको याद रखनी कि कब से कब तक की एंट्री है। और डायरी कब लिखनी स्टार्ट करी थी एन फ्रैंक ने? 20 जून में। It was eventually translated from its original Dutch into many languages। तो ओरिजिनली एन फ्रैंक ने इसको डच लैंग्वेज में लिखा था, लेकिन जब इसको पब्लिश करवाया गया तो इसलिए लोगों ने इतना पसंद किया कि इसे कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। 60 लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक। और इसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक कहा जा सकता है, और ऑलमोस्ट इसकी 30 मिलियन कॉपीज़ जो हैं वो सेल हो चुकी हैं। There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary। और इनकी डायरी के बेसिस पे बहुत सारे फिल्म अडॉप्शन हुए, टेलीविज़न अडॉप्शन हुए, थिएट्रिकल प्रोग्राम भी हुए, और इवन ओपरा में भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए। इनकी डायरी में जो भी लिखा था उसके बेसिस पे, इनकी लाइफ के बेसिस पे, इनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये वर्क जो है, दो एन फ्रैंक वॉज नॉट मच ओल्डर बट her maturity level was high। The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation। तो इसमें एन फ्रैंक ने अपना जो एक्सपीरियंस है उसको मेंशन किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया उस समय नाजी इन्वेंशन था और इन लोगों को छुपना पड़ रहा था, जोइश लोगों को छुपना पड़ रहा था। तो उस टाइम लोगों को डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम थी और क्या क्या टॉर्चर थे, तो वो सब इन्होंने मेंशन किया है। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victim। और एन फ्रैंक जो है, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। तो होलोकॉस्ट क्या है? होलोकॉस्ट इज अ सिस्टमेटिक मास मर्डर ऑफ 11 मिलियन पीपल, जिसमें कि 6 मिलियन जीज पीपल थे और 5 मिलियन अदर थे। फॉर एग्जाम्पल स्लीव्स थे एंड द पीपल हु वर डिसेबल्ड, हु वर नॉट फिजिकली एबल, एंड दे वर किल्ड बाय नाजी जर्मनी बिफोर एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड under the order of Hitler। So this is very important word। You have to keep all the things in your mind।
लेट्स सी होलोकॉस्ट इन डिटेल। सो होलोकॉस्ट क्या है? जब 1933 में अडोल्फ हिटलर की सत्ता आई थी, जर्मनी में जब उनकी सत्ता आई थी, तो उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करी थी जो कि नाजीज था, नाजीवाद, जिसे नाजीवाद के नाम से जाना जाता है। और इनकी जो थॉट्स थे, जो इनके प्रिंसिपल थे, वो जूइश के अगेंस्ट थे, क्योंकि इनको लगता था कि इनकी जो भी थिंकिंग है वो जूइश से मैच नहीं होती, और इन्होंने जूइश को सब ह्यूमन बोला। इन्होंने बोला कि वो ह्यूमन की कैटेगरी में नहीं आते, और इसलिए 1939 में जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर को इवोक किया था, तो उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो भी जूस हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा, पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। और इन्होंने ये लॉजिक दिया कि ये जर्मन्स के वेलफेयर के लिए, जबकि ये बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स की हेल्प से कुछ कंसंट्रेशन कैंप बनाए, और उसके बाद जो भी जूइश लोग थे उन्हें इकट्ठा करके वहाँ पे रखने, यू कैन से वहाँ पे गैदर करने लगे, उनसे काम करवाते, एक जगह इकट्ठा करते, और फिर उसके बाद उनको किल भी कर दिया जाता था, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और उनको यू कैन सी जो कंसंट्रेशन कैंप थे, वो एक तरह से उनका पर्पस यही था कि जो भी जूइश हैं उनको इकट्ठा करके किल किया जाए। और कई बार तो वहाँ पे उन्हें भूखे छोड़ दिया जाता था, कई बार वहाँ पे पॉइजनस गैस छोड़ दी जाती थी, जिसकी वजह से वो लोग स्टार्वेशन की वजह से डेथ हो जाते थे। जो लोगों को डिसेबल समझा जाता था उन्हें भी पूरी तरह से किल कर दिया जाता था, उन्हें भी यू कैन से उन्हें किसी काम का नहीं समझा जाता था। तो इसके दौरान क्या हुआ था, लगभग 60 लाख जूस जो हैं उनका मर्डर कर दिया गया था, और जिसमें 15 लाख चिल्ड्रेन भी थे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो ब्रूटल किलिंग है, इसमें ना तो चिल्ड्रेन को देखा जा रहा है, ना लेडीज़ को देखा जा रहा है, वहाँ पे जो भी है, जो भी जूइश हैं, वहाँ पे उनको किल कर दिया जा रहा है। सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ होलोकॉस्ट, दैट व्हाट वाज एग्जैक्टली द होलोकॉस्ट वर्ड मीनिंग। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एन फ्रैंक जो एक्सपीरियंस कर रही होंगी वो कितना टेरिफाइंग होगा। अब वो काफ़ी साल से उनकी फैमिली और वो हाइड कर रहे थे, और उनको हर वक्त इस बात का डर लगा रहता था कि कब उनको ढूंढ लिया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 साल जब वो छुपे थे, उसके बाद किसी ने उनको बिट्रे किया, और उसके बाद फाइनली उनको कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया, और उसके 1 वीक बाद एन फ्रैंक की डेथ हो गई। और एन फ्रैंक के पहले उनकी सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक की भी डेथ हो गई, और उसमें उनकी फैमिली में उनके फादर के अलावा कोई भी नहीं बचा। तो इसी से हमें समझ में आ रहा है कि कितना ज़्यादा ब्रूटल था, कितना ज़्यादा फुल ऑफ ऑपरेशन था ये नाजीवाद। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर लाइन बाय लाइन। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब एन फ्रैंक जब अपनी राइटिंग डायरी स्टार्ट करती है, फर्स्ट टाइम जब डायरी राइटिंग लिखती है, तो उनकी फर्स्ट लाइन क्या है कि डायरी लिखना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। मेरे जैसे के लिए डायरी राइटिंग कर लिखना बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। ऐसा क्यों है? Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old school girl. म्यूजिंग मतलब थॉट और रिफ्लेक्शन। तो जब इन्होंने डायरी राइटिंग स्टार्ट करी तब वो कितने साल की थी? 13 ईयर्स की थी। तो अब ये कहती हैं कि मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों है? इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कभी लिखी नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद ना तो मैं ना तो कोई और 13 ईयर्स गर्ल्स की थॉट और रिफ्लेक्शन को पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा। तो ये जो पहला इनका सेंटेंस है, हमें पता चलता है कि ये आयरॉनिकल है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनकी डायरी राइटिंग जो है उनको कोई भी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है दैट द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट रेड बुक, एंड यू कैन से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड बुक ऑल्सो, एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड इन 60 लैंग्वेजेस। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट और कितना यू कैन से कितना अच्छा इनका कंटेंट रहा होगा जो इन्होंने लिखा है। और भले ही एन फ्रैंक को उस समय ये बात नहीं, एन फ्रैंक को इस बात का कोई भी आइडिया ना रहा हो। ओ वेल इट डजेंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग। अब ये क्या कहने कि कोई मैटर नहीं पड़ता कि कोई से पढ़ने में इंटरेस्टेड होगा या नहीं, बट आई फील लाइक राइटिंग, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने थॉट्स को लिखना चाहिए। दैट्स वाई आई हैव स्टार्टेड डायरी राइटिंग, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। To get all kinds of thing off my chest means to express something that has been worrying you and you have wanted to express it.
तो अब ये कह रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे मन में बहुत सारे वरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा बोझ है मेरे मन में और मैं उसे हल्का करना चाहती हूँ, मैं उसे शेयर करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे डायरी राइटिंग की ज़रूरत है। तो आप भी इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग ऑफ माई चेस्ट। ओके, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैट people. This is the most important line, one of the most important line you can see. Why does she say so? Paper has more patience than people. I thought of this thing on one of those days when I was feeling a little depressed. अब ये कह रही है कि मेरा ऐसा मानना है कि पेपर के अंदर लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है। वाई? बिकॉज इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर योर थॉट विद समवन, मे बी द अदर पर्सन इज इंटरेस्टेड, मे बी द अदर पर्सन इज very much you can say concentrated whatever you are saying, maybe not. लेकिन अगर आप पेपर पे अपनी बातें लिख रहे हो तो आपको कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा और आप जितना मन चाहे उतना लिख सकते हो, जैसा चाहे वैसी बातें बता सकते हो। लेकिन अगर आप ह्यूमन बीइंग की बात करो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिले जो ट्रस्टवर्दी हो या कोई ऐसा पर्सन मिले जो आपकी बातों को समझता हो। लेकिन जब आप डायरी राइटिंग करें, आप पेपर में अपनी बातें शेयर करें, तो वहाँ से कहीं बातें जाएंगी नहीं। और दूसरा ये कि आप अपनी बातें पूरी तरह से उसमें कर सकते हो। आई थॉट ऑफ दिस थिंग ऑन वन ऑफ दोज डे व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस। तो ये कब ऐसा कह रही हैं? एक दिन वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रही थी एंड शी वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन एंड माई हैंड। तो जब आप कभी परेशान होते हो, आपके मन में कोई बर्डन होता है, तो आप इसी पोज में बैठते हो जैसे कि इमेज में दे रहा है। तो यहाँ पे ऐसे चिन में हाथ रख के, चिन को अपने हाथों पे रख के एन फ्रैंक भी कुछ सोच रही थी और ये बात कहती है दैट पीपल हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। बोर्ड एंड लिस्टलेस, शी वॉज फीलिंग बोरिंग एंड शी वॉज फीलिंग एनर्जी लेस। यहाँ पे ये लिस्टलेस वर्ड है जो वो कहाँ पे आया है? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी चैप्टर में जो डॉग है उसके लिए वर्ड यूज़ हुआ था। तो वो एनर्जी लेस फील कर रही हैं और बोरिंग फील कर रही हैं। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट। अब ये सोच रही हैं कि मुझे रूम के अंदर जाना चाहिए या मुझे रूम के बाहर जाना चाहिए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, और सो फाइनली जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं जहाँ थी वहीं रुक गई। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स डीपली और सीरियसली थॉटफुल। येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। तो वो बहुत ही सीरियसली सोच रही थी और कहती है येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाई डज एन फ्रैंक से सो। सो आई हैव टोल्ड यू द रीजन बिहाइंड दिस। And since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary. अब ये क्या करें कि चूँकि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं इस डायरी को किसी को पढ़ाऊँगी। स्टिफ बैक नोटबुक क्यों लिखा है? क्योंकि डायरी का जो कवर होता है वो बहुत स्टिफ होता है, वो दफ्ती का होता है। तो इसलिए कह रही है कि इस डायरी को मैं किसी को भी नहीं पढ़ाऊँगी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। जब तक कि मुझे एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता, एक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड नहीं मिल जाता, मैं इसे जो भी मैं लिख रही हूँ मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी, मैं किसी को भी नहीं शो करूँगी। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस। तो इसलिए इससे कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं बनता है। तो ये यहाँ पे कन्विंस करना चाहते हैं कि मैं डायरी राइटिंग क्यों कर रही हूँ, और ये क्योंकि 13 ईयर्स ओल्ड है तो इसलिए वो ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि 13 ईयर्स ओल्ड कोई ज़्यादा एज नहीं है, वो टीन एज है और उसमें आप उतने मैच्योर नहीं होते हो। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. अब देखिए यहाँ पे क्या कहती हैं, एन फ्रैंक कहती है कि अब जो मैं आपसे बात डिस्कस कर रही थी कि किस बात की वजह से मैं डायरी लिखना चाहती हूँ, तो वो कौन सी बात है? वो बात ये है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकूँ। तो यही वजह है कि जब इनको कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड नहीं मिला तो इन्होंने सोचा कि डायरी राइटिंग किया जाए। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is a completely alone in the world. अब इन्होंने ये बात कही कि इनका कोई फ्रेंड नहीं है, तो अब ये बताने लगी कि इसे मैं ज़रा और क्लियर कर दूँ, क्योंकि कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल अकेली है, उसके पास कोई भी नहीं जिससे अपनी बातें कह सके। एंड आई एम नॉट, और ये कहती है कि मैं लोनली नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब कोई है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। तो इनके पेरेंट्स हैं, इनकी सिस्टर है एल्डर, जिनका नाम मैंने बताया आपको मार्गरेट फ्रैंक, और ऑलमोस्ट 30 पीपल हैं जिन्हें फ्रेंड कह सकते हैं। लेकिन ये आपके साथ भी होता है।
आपके भी बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, आपकी फैमिली होती है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, लेकिन बहुत बार आपके साथ भी ये चीज़ होता है कि आपके पास कोई भी ऐसा नहीं जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकें, जो आपकी बातें समझ सकें। तो आप एन फ्रैंक की इस फीलिंग को खुद की फीलिंग से कोरिलेट कर सकते हैं। I have a family loving arts and a good home. No, on the surface I seem to have everything except my one true friend. अब ये क्या कह रही है कि मेरी फैमिली भी है, आर्ट्स भी है, मेरे पास घर भी है, लेकिन सरफेस लेवल पे मेरे पास सब कुछ है। अगर कोई मुझसे पूछे कि मेरे पास क्या है, तो मेरे पास सरफेस लेवल पे तो सब कुछ है सिवाय एक ट्रू फ्रेंड के। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ट्रू फ्रेंड की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। आप सब इस बात से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं होता तो आपके मन में भी बहुत सारी बातें होती हैं जिनसे आप शेयर करना चाहते हो, लेकिन जब तक आपको राइट पर्सन ना मिले आप नहीं शेयर करते। तो यही प्रॉब्लम एन फ्रैंक के साथ भी थी। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ माई फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। अब ये बता रही है कि जब अपनी फ्रेंड्स के साथ होती हैं तो उनके साथ बहुत अच्छा टाइम बिताती हैं। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। लेकिन ये कोई भी अपनी पर्सनल बातें उनसे नहीं शेयर कर पाती है। जब भी उनसे बातें करती हैं तो ऑर्डिनरी डेली लाइफ की बातें करती हैं, लेकिन जो इनके मन में है, वरीज चल रही हैं, जो इनके माइंड में बातें चल रही, वो उसको नहीं डिस्कस कर पाती, नहीं शेयर कर पाती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। रीज़न क्या है? कहती हैं कि हो सकता है इसका रीज़न यही कि मुझे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नहीं फील होती, उतना मुझे कनेक्शन नहीं फील होता अपनी फ्रेंड के साथ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम है कि इनका कोई रियल फ्रेंड नहीं है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। कह रही कन्फाइड मतलब क्या होता है? टू शेयर योर सीक्रेट टू समवन whom you trust, or you can say to share your secret with a person who is trustworthy। तो अब ये कह रही मे बी ये मेरी फॉल्ट है कि मैं किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करती कि मैं उनसे अपने सीक्रेट शेयर कर सकूं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। अब ये कह रही जो भी बातें हैं, हो सकता है मेरे अंदर कमी हो या हो सकता है कोई फ्रेंड्स ही ऐसी ना हो, लेकिन ये चीज़ें नहीं बदल पाएंगी। मतलब मैं अपनी बातें किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं शेयर कर सकती जिस पे मैं ट्रस्ट ना करूं, या जिसके लिए मैं कन्विंस ना हो जाऊं कि ये ट्रस्टवर्दी पर्सन है और इससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही रीज़न है कि मैंने डायरी राइटिंग स्टार्ट करी। तो ये आपको इस पोएम की इंट्रोडक्शन में क्या पता चला कि इनकी लाइफ में एक फ्रेंड की कमी है जिसके कारण इन्होंने डायरी राइटिंग स्टार्ट करी, और यही कारण है कि अपनी डायरी को एज अ फ्रेंड मानती हैं। अपनी डायरी को इन्होंने क्या नाम दिया है? किटी। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन आई डोंट वॉन्ट टू जॉट आउट द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। अब क्या करिए? इनहांस, इंटेंसिफाई द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। तो इनके इमेजिनेशन में एक ट्रू फ्रेंड की क्वालिटीज़ क्या हैं? ट्रू फ्रेंड की एक इमेज इनकी इमेजिनेशन में बनती रहती थी। तो अब ये कह रही क्योंकि अब ये डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मान रही है, तो कह रही है क्योंकि ये डायरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और यही वजह है कि मैं इस डायरी में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी जैसा कि मोस्टली पीपल करती हैं। जब मोस्टली पीपल डायरी राइटिंग करते हैं तो वो डेट वाइज लिखते हैं कि आज क्या हुआ, जो भी इन्फॉर्मेशन उसको लिखते जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। आई वॉन्ट डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अब कह रही इसका वजह क्या है? बिकॉज ये डायरी जो है ये मेरी फ्रेंड होगी और मैं इस फ्रेंड को क्या नाम दूंगी? किटी। So the question can be asked from the pages I have explained that what makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank। कि डायरी राइटिंग जो है एन फ्रैंक के लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? इससे लॉन्ग आंसर भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी पूछे जा सकते हैं। Why does Anne want to keep a diary? So I have told you that she was not having any trustworthy friend. She was not having anyone with whom she could share her secret. That why she wanted to have a diary. She wanted to keep a diary. Next question can be asked that why did Anne think that she could confide more in her diary than in people? And you can correlate this line with the quotation that paper has more patience than people. तो यहाँ पे मैंने जितना भी पढ़ा है उससे कुछ क्वेश्चन कवर होते हैं, सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड।
Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब क्या कह रही हैं कि अगर मैं डायरी राइटिंग आज स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आज ही से डायरेक्ट मैं लिखना स्टार्ट कर दूँ जो भी मेरी बातें मन में चल रही हैं, तो अगर कोई पढ़ेगा, जो भी मैं किटी से, जो मैं अपनी डायरी में अपनी बातें कर रही हूँ, अगर उसे कोई पढ़ेगा तो किसी को वो बातें समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैंने कोई भी प्रायर इन्फॉर्मेशन, प्रायर इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तो इसलिए ताकि लोग इन बातों को समझ पाए, जो मैं बातें कर रही हूँ उनको समझ पाए, इसलिए मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच दूंगी। तो इन्होंने अपनी डायरी एंट्री करने से पहले एक ब्रीफ स्केच दिया अपनी फैमिली का। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। तब ये अपने फादर के बारे में जब बताती है तो क्या कहती है, द मोस्ट एडोरेबल फादर। इसका मतलब है कि इनके फादर अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और बहुत ज़्यादा केयरिंग थे। जब इनके फादर ने मैरिज करी तो उनकी एज क्या थी, 36, और इनके मदर की एज थी 25। माई सिस्टर मार्गरेट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और इनकी सिस्टर कौन है, मार्गरेट, जिनका जन्म हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में। कब हुआ था, 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। और एन फ्रैंक का बर्थ कब हुआ था, 12 जून 1929 को। तो ये इनके फादर हैं, ये मदर हैं और ये इनकी सिस्टर हैं। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो जब ये 4 साल की थी, 4 ईयर्स की थी जब तक ये फ्रैंकफर्ट में रही। और उसके बाद क्योंकि जर्मन का इन्वेजन होने लगा तो 4 ईयर्स की थी जब से इनको बार बार इनको प्लेस चेंज करनी पड़ी। तो ये आपको ये भी ध्यान रखनी है कि 4 ईयर्स की थी जब इन्हें दूसरी जगह एमिग्रेट होना पड़ता था। एमिग्रेट एमिग्रेट मतलब क्या होता है, जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री सेटल होते हैं। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। तो इनके फादर हॉलैंड चले गए, हॉलैंड में एमिग्रेट हो गए। कब, 1933 में। एमिग्रेट मैंने बताया when one person settles from one country to another and he settles permanently. My mother Edith Hollander Frank went with him to Holland in September. और इनकी मदर जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, तो ये अपने हस्बैंड के साथ हॉलैंड गई। कब गई, सितंबर में। वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एचन। एचन कहाँ है, ए सिटी इन जर्मनी, टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। और इनकी ग्रैंड मदर रहती थी एचन में, जो कि जर्मनी में एक सिटी है। तो इनकी सिस्टर को और इनको वहाँ भेजा गया और इनकी मदर और इनके फादर चले गए हॉलैंड। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। अब मार्गरेट भी हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी। और ये कब गई, ये बाद में गई, ये फरवरी में गई। तो ये सब क्यों जा रहे हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, ड्यू टू जर्मन इन्वेजन। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। तो इनको एज अ बर्थडे प्रेजेंट वहाँ पे लाया गया क्योंकि मार्गरेट का बर्थडे था। और जब ये वहाँ गई तो मार्गरेट को एक सरप्राइज के तौर पे इनको भेजा गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेस्ट्री नर्सरी स्कूल। और इन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी मॉन्टेस्ट्री नर्सरी स्कूल में। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। तो जब तक ये 6 ईयर्स की नहीं हुई थी इन्होंने वहाँ पे स्टडी करी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और जब ये 6 ईयर्स की हो गई तो इन्होंने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपरस द हेड मिस्ट्रेस। तो इनकी टीचर कौन थी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, मिसेस कूपरस वॉज द हेड मिस्ट्रेस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो क्योंकि ये अपनी टीचर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी तो इसलिए जब इनकी इस क्लास की पढ़ाई ख़त्म हो गई तो इन्हें बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। और जब इन्होंने उस स्कूल को छोड़ा तो इनकी हेड मिस्ट्रेस और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। इन द समर ऑफ 1941 grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। तो 1941 ईयर है, ये आपको ध्यान रखना है। 1941 का समर था जब इनकी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब हो गई, शी फेल इल, और इनका ऑपरेशन भी होना था। इस कारण जो इनका बर्थडे है उसमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। और इनकी ग्रैंडमा की डेथ हो गई। शी वॉज एक्सपायर्ड ऑन 1942। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर।
अब इस लाइन से हमें पता चलता है कि एन फ्रैंक अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा लव करती हैं। इन्होंने ये कहती हैं कि कोई भी नहीं जानता कि मैं उनको कितना ज़्यादा याद करती हूँ और कितना ज़्यादा उनसे लव करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंटेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो इनका जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ 1942 में, उसमें ग्रैंडमा की याद में इन्होंने एक कैंडल लिट की थी बाकी सारी कैंडल्स के साथ। द 4 of us are still doing well and that brings to me the present date of 20 June 1942। अब ये क्या कह रही है कि जो हम 4 लोग हैं, जो इनकी फैमिली में इनकी मदर हैं, इनके फादर हैं, ओके, इनकी सिस्टर हैं, और ये कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। और ये इसके बाद ये प्रेजेंट डेट पे आ जाती है 20 जून। तो इनकी जो डायरी एंट्री जो इन्होंने की है वो इन्होंने 12 जून से करी है, और उन्होंने डायरी लिखना कब स्टार्ट करी है? 20 जून। तो ये आपको दोनों डेट याद रखनी है, क्योंकि 12 जून को इनकी डायरी मिली थी इनको, तो और 12 जून को इनका बर्थडे होता है, तो आपको याद रहेगा। दूसरा चीज़, आप ईयर कैसे याद रखेंगे? 1942 में इन्होंने डायरी लिखनी स्टार्ट करी थी और 1924 में इनका बर्थ हुआ था। तो आप जो डेट है उसको रिवर्स करके आप इसको याद कर सकते हैं। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो सोलेम मतलब सीरियस, और यू कैन से सैक्रेड। तो यहाँ पे कह रही है कि ये अब इसी इंट्रोडक्शन के साथ मैं अब अपनी प्रेजेंट डेट पे आ जाती हूँ, जो कि 20 जून 1942 है, और मेरी डायरी को एक सोलेम डेडिकेशन भी है। सैटरडे 20 जून 1942 डियरेस्ट किटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अपनी डायरी को एज अ फ्रेंड कंसीडर करती हैं, इसलिए ये किटी बोलती हैं। और नॉर्मल अगर डायरी फॉर्मेट की बात की जाए तो हम लिखते हैं डियर डायरी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा डियरेस्ट डायरी, और यहाँ पे इन्होंने डेट लिखी है। तो ये फर्स्ट जो बात बताती है, जो फर्स्ट बात जो शेयर करती हैं, वो बताती है अपनी क्लास के बारे में, और इससे कई क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। Our entire class is quaking in its boot. Quaking in its boot means shaking with fear and nervousness. Why? The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to next form and who will be kept back. तो फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड या क्लास है। तो अब ये कहते हैं कि मेरी पूरी क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। इसका रीज़न ये था क्योंकि जो मीटिंग होने वाली थी टीचर्स की, और उसमें वो डिसाइड करेंगे, टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कि कौन स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन स्टूडेंट नहीं जाएगा, मतलब कौन स्टूडेंट फेल हो जाएगा और कौन पास होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेस्ट। अब रिजल्ट अनाउंस होने वाले थे, इसलिए इनकी आधी क्लास जो थी वो बेट लगा रही थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, जिसमें से जीएन एंड आई लव ऑलवेज सिली आर द 2 बॉयज बिहाइंड अस, सीएन एंड जैक्स। और जीएन की फ्रेंड का नाम है, और ये यानी कि मेरे जस्ट पीछे 2 बॉयज़ बैठे थे, सीएन एंड जैक्स, और हम उन पे हंस रहे थे। क्यों हंस रहे थे? हु हैव स्टार्क देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। क्योंकि उन्होंने बेट लगाई थी इसी चीज़ के लिए कि उन्होंने ये बेट लगाई थी कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, और इसके लिए उन्होंने अपनी सारी हॉलीडेज़ की जो सेविंग करी थी उसको बेट पे लगा दिया था, और इसी वजह से एन और उनकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा हंस रही थी। From morning to night it is you are going to pass, no I am not, yes you are, no I am not। तो ये कह रही है कि मॉर्निंग से नाइट तक बस यही बातें चलती रही कि तुम पास हो रहे हो, नहीं तुम नहीं पास हो रहे, जैसे कि आपके साथ भी होता है। तो इस चीज़ को आप कोरिलेट कर सकते हैं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कैंट काम देम डाउन। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस मतलब जिनकी फ्रेंड थी वो भी उन बॉयज़ से कह रही थी कि शांत हो जाओ, इस बारे में डिस्कशन मत करो, और ये भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। लेकिन उसके बावजूद इनके जो क्लास के जो बॉयज़ थे वो अपनी बेट को लगाना बंद नहीं कर रहे थे। तो ये चीज़ आपके साथ भी होती है। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कहती हैं कि अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा यही मानना है कि मेरी क्लास में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो डमीज़ हैं। डमीज़ मतलब बहुत ज़्यादा स्टूपिड है, वो इंटेलिजेंट बिल्कुल नहीं है। एंड अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, और लगभग 1/4 ऑफ द क्लास जो है उसे फेल हो जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर्स हैं वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर हैं। हमें नहीं पता है कि वो अगले पल क्या करने वाले हैं, इसलिए हम इस बारे में कोई गेस नहीं कर सकते, कोई हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये लाइन तो आपके भी साथ हो सकती है, क्योंकि जब कभी आप सोच रहे हैं कि आपकी टीचर ऐसे रिएक्ट करेंगे तो हो सकता है उसका जस्ट अपोजिट रिएक्ट करें।
So you can find a well connection with your school experience also. I'm not so worried about my girlfriends and myself. अब ये क्या कहती है कि मैं अपनी फ्रेंड्स और अपने बारे में बहुत ज़्यादा वरीड नहीं हूँ, क्योंकि अपने रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा वरीड नहीं है. वी विल मेक इट, इनका कहना है कि मुझे पूरा भरोसा है कि हम दोनों पास हो जाएंगे. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, और केवल एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में श्योर नहीं है, वो क्या है, मैथ्स. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, लेकिन एक ही चीज़ है जो हम कर सकते हैं, वो क्या है, वेट. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर, और तब तक हम दोनों एक दूसरे को कंसोल कर रहे थे, एक दूसरे को कह रहे थे दैट डोंट लूज होप, एवरीथिंग विल बी फाइन. आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद माई ऑल टीचर्स. तो अभी एन फ्रैंक बताती है कि इनका इनके टीचर्स के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर था और इनके टीचर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे. देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men and 2 women. और इनके टीचर्स जो थे वो 9 थे, जिनमें 7 men और 2 women थे. मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी मीन्स एन ओल्ड फैशन पर्सन हु टीचर्स मैथ्स. तो ये अपने टीचर, मैथ्स टीचर के बारे में बताती है जिनका नाम है मिस्टर कीसिंग. He was annoyed with me for ages. For ages means for a long time because I talk too much. तो ये इनसे बहुत लंबे समय से नाराज़ रहती हैं, annoyed रहती हैं, क्योंकि एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बात करती हैं. After several warnings, he assigned me extra homework and AC on the subject a chatterbox. और कई बार उन्होंने वार्निंग दी इनको, लेकिन जब ये बात करना नहीं बंद करी तो उन्होंने इन्हें एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और एक टॉपिक दिया जिसमें इनको ऐसे लिखना था. और टॉपिक क्या था, अ चैटरबॉक्स. अ चैटरबॉक्स कौन होता है, हु इज़ अ वेरी टॉकेटिव पर्सन हु टॉक्स अ लॉट. तो ये एन फ्रैंक बहुत ज़्यादा बात करती थी, इसलिए इनको इनको एज अ पनिशमेंट इस टॉपिक पे ऐसे लिखने को दिया गया. वट कैन यू राइट अबाउट दैट. अब एन फ्रैंक कहते हैं ये कैसा टॉपिक है, इस पर आप क्या लिख सकते हैं. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड. तो इन्होंने सोचा कि अभी मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी कि मुझे क्या लिखना है. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. सो इन्होंने उस ऐसे का टाइटल अपनी नोटबुक में नोट कर लिया. उसके बाद उन्होंने अपनी नोटबुक को बैग में रखा और फिर ये अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करने लगी, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो सो मच इरिटेटेड when she saw the title of the essay. That evening after I finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. तो उस इवनिंग जब वो अपना होमवर्क कर रही थी तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने उस एसे का टाइटल देखा जो इनकी कॉपी में इन्होंने अपनी नोटबुक में लिखा था. तो अचानक से उस टाइटल पे इनकी नज़र पड़ी कि इनका भी एक्स्ट्रा असाइनमेंट भी बचा हुआ है. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. तो ये अपने पेन को अपने माउथ में चू करने लगी और वो सोचने लगी. जब आप थिंक करते हो किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि अनकॉन्शियसली आप अपना पेन अपने माउथ पे डाल लेते हो. सेम एज एन फ्रैंक के साथ भी वो सोचने लगी कि वो इस टॉपिक पे क्या लिखें. एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स. रैम्बल ऑन मतलब टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग. तो कह रही है अगर ये टॉपिक किसी को दिया जाए तो कोई भी एमलेसली लिख सकता है, कुछ भी बिना मतलब की बातें लिख सकता है. और कैसे लिख सकता है, जब आपके पास क्या होता है, जब आपको कोई असाइनमेंट दिया जाता है और आपके पास कम कंटेंट रहता है तो आप क्या करते हो, लिखते हो बिग फॉन्ट में लिखते हो और बहुत सारा स्पेस छोड़ देते हो ताकि आपका पेज जो है वो भरा भरा लगे. तो यही चीज़ एन फ्रैंक के साथ भी हुआ. एन फ्रैंक ने क्या कहा कि कोई भी इस टॉपिक पे बड़ी बड़ी बातें कर सकता है और वो पेज कैसे भरेगा, वो लेटर के बीच में बहुत सारे स्पेसेस छोड़ देगा जिसकी वजह से पेज जो है वो भर जाएगा. बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. लेकिन ये कहती है कि जो टास्क था, जो मेन मोटो था वो क्या था कि मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दूँ जिससे मैं अपने टीचर को कन्विंस कर सकूँ दैट व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. कि ये प्रूफ करना चाहती थी कि टॉकिंग की नेसेसिटी क्या है, इसलिए ये रैम्बल ऑन नहीं करना चाहती थी, ऐसे ही अननेसेसरी और एमलेसली नहीं लिखना चाहती थी. वो चाहती थी कि वो ऐसी बातें करे जिनसे ये बात साबित हो सके कि बातें करने की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. और ये बहुत देर तक सोचती रही और अचानक से इनके माइंड में एक आइडिया आया. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. और इन्होंने 3 पेजेस लिखे. जो भी मिस्टर कीसिंग ने टॉपिक दिया था चैटरबॉक्स, इस पर उन्होंने सोचा और उस पर 3 पेजेस लिखे. और जब इन्होंने उसको लिख लिया तो इसको पढ़ने के बाद उन्हें बहुत सेटिस्फाइड फील हुआ क्योंकि इन्होंने जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए थे उनसे ये सेटिस्फाइड थी. अब देखते हैं इन्होंने क्या आर्ग्यू किया था. इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसे आप ध्यान दीजिएगा.
I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control. अब ये कहती हैं कि मैंने ये आर्ग्यू किया कि जो टॉक करना है वो एक स्टूडेंट की क्वालिटी होती है. जो भी स्टूडेंट होता है उसको आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होता है. एंड आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. लेकिन कहती है कि फिर भी मैं इसे कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर. तो कहती हैं कि मैं इस हैबिट को सही नहीं कर सकती, इस हैबिट से मैं छुटकारा नहीं पा सकती, मैं क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बात करती हैं. मेरी मदर भी मेरी जैसी टॉकेटिव है. अगर वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती तो जितना मैं बात करती हूँ उतने वो भी बात करती हैं. एंड दैट्स देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिटेड क्या होता है? जो क्वालिटीज़, जो कैरेक्टरिस्टिक आप अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करते हो तो उन्हें बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स. तो ये कह रही है कि जो ये जो क्वालिटी है, जो टॉकिंग की क्वालिटी है, ये इनहेरिटेड है, मैंने अपनी मदर से इनहेरिट किया है और इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ. मैं यही कर सकती हूँ कि मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ. इसके अलावा टॉकिंग जो है वो स्टूडेंट का ट्रेट होता है. तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दैट व्हाट वाज द आर्गुमेंट दैट एन फ्रैंक गिव फॉर इन द एसे इन द होमवर्क असाइनमेंट चैटर बॉक्स. तो जो उनके टीचर ने असाइनमेंट दिया था उसमें उन्होंने कैसे टॉकिंग को डिफेंड किया, क्या आर्गुमेंट्स दिए, तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. तो आप वहाँ पे इसे लिखेंगे. मिस्टर कीजिंग हैड गुड लॉफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स. तो जब इनके टीचर ने पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा हंसने लगे. बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड एसे. अब ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने जब उस एसे को पढ़ा तो उन्हें बहुत ज़्यादा हंसी आई. लेकिन जब उन्होंने देखा कि नेक्स्ट क्लास में भी मैं उसी तरह बात कर रही थी, मैंने बात करना नहीं बंद किया, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा एसे दिया. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स. इनकरेजिबल क्या होता है? समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी. तो एन फ्रैंक की बैड क्वालिटी क्या थी? वो बहुत ज़्यादा बात करती थी. तो इन्होंने ये एसे दिया. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. अब इन्होंने सेकेंड वाला जो असाइनमेंट है उसको भी ले लिया और उसके बाद 2 क्लासेस तक इनके टीचर मिस्टर कीजिंग ने इनसे कोई कंप्लेन नहीं की. However, during the third lesson he would finally had enough. लेकिन थर्ड क्लास में उनके लिए एकदम इंटॉलरेबल हो गया एन फ्रैंक का टॉकिंग. सो he again gave a lesson, he again gave an assignment to complete. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. तो इन्होंने एज अ पनिशमेंट एन फ्रैंक को एक असाइनमेंट फिर से दिया और एक टॉपिक दिया. थर्ड टॉपिक क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. तो ये इनकी एसी का टाइटल था. तो इनको मिस्टर कीजिंग ने कितनी बार पनिश किया? 3 टाइम्स पनिश किया. फर्स्ट था चैटरबॉक्स, सेकेंड था एन इनकरेजिबल चैटरबॉक्स, थर्ड है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके टीचर ने क्या पनिशमेंट दी थी. तो आपको इन एपिसोड्स को वहाँ पे मेंशन करना है. द क्लास रोड मतलब बहुत तेज़ हंसना. तो ये जो पूरी क्लास थी वो हंसने लगी. आई हैड टू लाफ टू दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई एनजुनिटी में मतलब ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस. तो एन फ्रैंक के अंदर जो भी नए थॉट्स आ रहे थे, इनोवेटिव थॉट्स आ रहे थे, इन्होंने अपने प्रीवियस असाइनमेंट में उनको यूज़ कर लिया था. अब उनके पास कोई भी थॉट्स नहीं बचा था क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है. हमने इनकी प्रीवियस असाइनमेंट में ही देखा, इन्होंने कहा था कि मुझे अपनी बात को प्रूव करना है, मुझे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स देना है जिससे समझ में आता है कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है. तो ये कह रही है कि पहले के टॉपिक्स में ही मेरी सारी इन्वेंटिवनेस और ओरिजिनलिटी जो है वो ख़त्म हो चुकी थी चैटर बॉक्सेस के टॉपिक पे. तो अब इनके पास कोई नया थॉट नहीं बचा था. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. अब कह रही है ये टाइम आ चुका है कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जो इन दोनों से डिफरेंट हो. पिछले असाइनमेंट में जो भी इन्होंने लिखा उससे कुछ डिफरेंट हो और ओरिजिनल हो. माई फ्रेंड सैन हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसी फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय. अब ये कह रही है कि मेरी फ्रेंड जो कि जिसका नाम है सैन, वो काफ़ी अच्छी है पोइट्री में और इनकी फ्रेंड ने इनको हेल्प किया उस एसे को लिखने में. और इनकी फ्रेंड ने कैसे हेल्प किया? उस एसे को लिखने के लिए इनके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई इनके पास कंटेंट नहीं था, कोई आइडिया नहीं था इनोवेटिव. तो इन्होंने हेल्प करी ताकि वो एसे को
स्टार्टिंग में वर्ड्स से लिख सके, वर्ड्स मतलब पोइटिक फॉर्म में। और जैसे ही उन्होंने अपनी फ्रेंड का आइडिया सुना ये काफ़ी खुश हो गए। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. अब ये गुस्सा थी काफ़ी ज़्यादा अपने टीचर से। अब ये कहती है कि मिस्टर कीजिंग जो है वो मुझ पे जोक बना रहे हैं, क्योंकि वो मुझे बार बार ऐसे टॉपिक दे रहे हैं जिससे मेरी हंसी हो रही है, ऐसे रिडिकुलस टॉपिक दे रहे हैं इसी के लिए, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ लिखूँगी जिससे ये जोक जो है वो उन्हीं पे उल्टा पड़ जाएगा। I finished my poem and it was beautiful. तो अब एन फ्रैंक बोलती हैं कि जब मैंने अपनी पोएम कंप्लीट करी, उसको पढ़ा, तो ये बहुत अच्छी पोएम थी। और ये पोएम का टॉपिक क्या था, क्या इन्होंने कंटेंट लिखा था? इट वाज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विद 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। तो इन्होंने अपनी पोएम में जो लिखा था वो एक मदर डक और एक फादर स्वैन के बारे में थी, जिनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, और इनके 3 डकलिंग्स को इनके फादर स्वैन ने बाइट करके मार दिया। वाई? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक करते थे। लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। तो बाई चांस जो मिस्टर कीजिंग थे, जो उनके टीचर थे, दो ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बट ही टुक द जोक राइट वे एंड ही रीड द पोएम टू द क्लास। और उन्हें ये पोएम इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने क्लास में भी पोएम पढ़ी, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपने कमेंट्स भी कुछ ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और उन्होंने उस पोएम को बाकी अदर क्लासेज में भी सुनाया। Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework। अब ये कह रही है कि उसके बाद से मिस्टर कीजिंग ने मुझे अलाउ किया क्लास में टॉक करने के लिए, और उसके बाद इन्हें कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया। उसका रीज़न क्या है कि मिस्टर कीजिंग इनकी ओरिजिनलिटी से और इनके इनोवेटिव आइडिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इन्होंने जो अपने लॉजिक्स दिए थे, जो इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे, वो बहुत ज़्यादा फ़नी थे। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स डीज। अब इसके बाद कहती हैं उसके अलावा एक बहुत ही डिफरेंट बात हुई। क्या बात हुई कि मिस्टर कीजिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थे, अब वो बहुत ज़्यादा फ़नी हो गए और वो क्लास में अक्सर जोक्स भी करते हैं। तो लास्ट में लिखती हैं यूर इन, और इसके बाद ये जो डायरी एक्सट्रैक्ट आपके सिलेबस में दिया है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो इनकी क्लास को जो इंसिडेंट्स है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेट्स सी। सो व्हाट वाज द रीज़न दैट एन फ्रैंक सेड दैट आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। तो यहाँ पे रीज़न मैंने बताया था कि रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था, दैट्स वाई द स्टूडेंट वर फीलिंग सो मच नर्वस एंड स्केयर्ड ऑल्सो। तो उसको आप वहाँ पे जो भी क्लास में जो बच्चे फील कर रहे थे, and you can add your experience also while answering this question. Next question can be asked about Mr. Keesing, that who was Mr. Keesing and how did he punish N। तो उन्होंने कैसे पनिश किया, वहाँ पे आप 3 जो उन्होंने असाइनमेंट दिए थे उनको आप डिटेल में मेंशन करेंगे। जो मैंने आपको बताया 3 असाइनमेंट जो ए से दिया गया तो उसको आप करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैन कैन बी आस्क्ड इज हाउ डिड एन रिस्पॉन्ड टू द पनिशमेंट गिवन बाय मिस्टर कीजिंग, और हाउ डिड एन रिस्पॉन्ड टू द एक्स्ट्रा होमवर्क। जो एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क जो दिया था मिस्टर कीजिंग ने, उसको कैसे उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो जो उन्होंने लिखा उसके बारे में आप आंसर करेंगे। हाउ डिड एन गेट रीड ऑफ एक्स्ट्रा होमवर्क, एन फ्रैंक को अपने एक्स्ट्रा होमवर्क से कैसे छुटकारा मिला, क्यों मिला, इसको आप लिखेंगे। और एंड वन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन फ्रैंक। तो जो भी मैंने आपको बातें बताएं एन फ्रैंक के बारे में, आप उनकी लाइफ के बारे में लिखेंगे, उनके नेचर के बारे में लिखेंगे, उन्होंने कब से कब तक डायरी एंट्री करी इसके बारे में आप लिखेंगे। शी वॉज गुड एट द साइकोलॉजिकल इंसाइट, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें बताई उनसे हमें समझ में आता है कि दो शी वॉज नॉट मच ओल्डर बट शी वॉज हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स एंड शी वॉज वेरी मैच्योर ऑल्सो। वो बहुत इंटेलिजेंट थी, इसके बारे में भी आप लिखेंगे। So this was all about the chapter. I hope that you really like the video. If you like the video, please hit the like button, share your feedbacks through your comments, and those who have not subscribed the channel yet, please subscribe and press the bell icon for getting the latest notification. Thank you all.